Hi students. So we were discussing about the structure of the tooth, and in that we have discussed the different parts, like three parts of the there are three parts we know. That's the first one, which is visible, that is called crown, the first part, and the middle part, which is called neck, which is present under the gum, which is not visible actually, and the rest, the part of the root of the tooth is present inside the alveoli or the socket. जैसे हमने बात किया था ना कि जो थीकोडोन ह्यूमन डेंटेशन में हम ह्यूमन डेंटेशन क्या है, इट्स अ थीकोडोन, राइट? सो थीकोडोन का मतलब क्या होता है? देयर मस्ट बी a proper socket and where the teeth is properly attached and it properly get is connected or it properly gets set properly, right? तो उसमें कोई gap नहीं होता. Entire alveoli is used, entire properly it is used and it is getting cemented with the alveoli and it is getting tightly attached with the alveoli bone, that is the alveolar bone. Okay, so तो बेसिकली हमने क्या देखा था कि टीथ के तीन पार्ट होते हैं, एक होता है क्राउन, दूसरा होता है नेक, तीसरा होता है रूट. और जो क्राउन होता है उसमें जो है इनामेल होता है, राइट? क्राउन में क्या होता है? वी आर हैविंग द फर्स्ट पार्ट और द फर्स्ट लेयर of the tooth is called enamel, and that is actually your crown. Crown is made up of enamel, and enamel is the hardest substance in human body. That also we know, right? And what is the composition of enamel? We don't. We will discuss just after. Just wait for some time. We'll discuss it detail later on. Now the next part, the next layer is actually made up of dentine. It is dentine. The next layer is known as dentine, and the first layer is your enamel. Then after that dentine, there is a hollow cavity present inside the tooth, and that is called pulp cavity, where we can see there are living cells and the nervous tissue, nerves and the connective tissues are present. You can see I have drawn it in black and red color, right? And then if you see here at the innermost part, we can see there are cells. These cells are which are present here. These are called odontoblast cells, right? And the odontoblast cells are present at the innermost area, innermost region, right? Now one more thing, this pulp cavity, it is having openings, it is having pore. यहाँ पे भी होगा, you can see it is in the left side and the right side. There are two pores at the root part of the tooth through which the connective tissue and the blood vessels and the nervous, जो connective tissue मतलब क्या है? Nerves and the blood vessels, they are going inside, right? And it is why what is the purpose? Purpose is to provide the proper nutrition, because because inside the cavity, inside the pulp cavity, the living cells are there. To survive them, for their proper functioning, they need a continuous gaseous exchange, right? Now apart from that, if you see in between the there is a layer which is present in between the cementing layer and the tooth. मतलब एल्वियोलाई का जो सीमेंटिंग लेयर है जिसके साथ टूथ जाके अच्छे से अटैच होता है, और टूथ का जो आउटर मोस्ट लेयर है उसके बीच में एक लेयर आपको दिख रहा होगा, यू कैन सी, and that is called periodontal membrane. That is called periodontal membrane. अच्छा, जो पोर है, जिस पोर के थ्रू the pulp cavity is connected with the pores, and these pores are basically known as apical foramen. क्या बोलते हैं इसे? apical foramen. और एक्चुअल में ये है क्या? These are root part opening. These are what? These are root part opening, right? These are root part opening. ठीक है? So now let us discuss these things in detail. तो हमें अभी तक क्या पता चला है, हमने क्या देखा? So when I will referring, I believe you have already drawn this diagram. So you refer the diagram when I am discussing the further points in detail, right? Crown, neck, root, right? So let's move on. Let's go to the next slide. Yeah. Now the root part is actually having the opening, that is what that we call apical foramen, that I have discussed with you, right? Now we'll start with the first part, the first layer of the teeth, of the tooth, that is called enamel. Now enamel is secreted by amylioblast cells. There is a special type of cells we have. Those cells are basically, they are secreting, their main function, if the questions comes in the examination that which cell is responsible or which cell is secreting the layer, that enamel, which cell is secreting the enamel. So the answer would be, you should give it amylioblast cell, right? Now the complete tooth have three layers. Tooth have how many layers? It have three layers. Okay, the outermost layer which is made up of enamel and at present only the crown. जो क्राउन पार्ट होता है, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, वो इनामेल से बनता है, ठीक है? अब इनामेल बनता है, अब इनामेल की हमने बात किया था, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी, राइट? एंड इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन.
अगर आपसे पूछा जाए कि एनामल का ओरिजिन क्या है, सो यू कैन राइट इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। क्या होता है ये? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। नाउ इट इज मेड अप ऑफ सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम। ये किससे बनता है? इट इज मेड अप ऑफ सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट फ्लोराइड्स। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट्स एंड फ्लोराइड्स। तो बेसिकली जो एनामल बनता है वो किससे बनता है? इट्स एक्चुअली मेड अप ऑफ सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं, केमिकल सॉल्ट्स होते हैं, उससे बनता है। और किससे बनता है? फ्लोराइड से बनता है। केमिकली नोन एज हाइड्रोक्सी एपेटाइट। केमिकली हम इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी एपेटाइट। केमिकली इट इज नोन एज हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकली अगर पूछा जाए कि ये जो इनामल बना है, जो इसका कॉम्पोजिशन है, जो केमिकल से इनामल बना है, उसे ऑल टुगेदर हम कॉमनली क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट। क्या कहते हैं हम उसे? हाइड्रोक्सी एपेटाइट। फाइन। नाउ इट हैज क्रिस्टलाइन फॉस्फेट। अब ये जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट है, हमने अभी देखा ना कैल्शियम फॉस्फेट, ये क्या है, किस फॉर्म में होता है? इट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन कैल्शियम फॉस्फेट। क्या होता है एक्चुअली ये? दिस इज क्रिस्टलाइन कैल्शियम फॉस्फेट। फाइन। नाउ अब देखो, एनामल का कॉम्पोजिशन हमें पता है, इट इज एक्चुअली फ्लोराइड एंड द कैल्शियम, क्रिस्टल कैल्शियम फॉस्फेट, राइट। ठीक है, क्रिस्टल कैल्शियम फॉस्फेट और फ्लोराइड से बनता है। लेकिन अगर इस कॉम्पोजिशन, जैसे अगर हमने देखा था, हमने पढ़ा था, मतलब आपने शुरू में हमने पढ़ा था कि जब मैल न्यूट्रिशन होता है या ओवर न्यूट्रिशन होता है, तो हमने देखा था ना क्या होता है कि अगर आपने अगर ज्यादा फैट कंटेंट आपने ज्यादा ले लिया तो आप ओबेस हो जाओगे। अगर आपकी बॉडी में फैट कंटेंट कम है, प्रोटीन कम है, तो आपको जो बच्चों में हमने देखा था, एग्जांपल हमने देखा था डिजीज, दैट वाज योर मारास्मस एंड व्हाट वाज दैट, या क्वार्शियरकर एंड मारास्मस, राइट। सो वैसे ही अगर किसी भी जो नॉर्मल कॉम्पोजिशन है हमारे टूथ का, अगर उसमें भी कुछ चीजें ज्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा? जैसे इफ द फ्लोराइड्स इज एक्चुअली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द टूथ, especially the enamel. We're talking about the enamel right now. So the fluoride is the one of the most important ingredients or important component which is actually making the enamel. अगर ये fluoride का जो परसेंटेज है ये अगर ज्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा? उससे भी प्रॉब्लम है। क्या होगा? उससे एक सिचुएशन डेवलप हो जाएगा, एक कंडीशन डेवलप हो जाएगा। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? मॉटलिंग कहते हैं। अब मॉटलिंग होता क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, यू कैन सी हियर दैट इज कॉल्ड योर मॉटलिंग। या you can see here MOTTLING, mottling। हाँ, मोल्टिंग नहीं है, मॉटलिंग है। सो बी क्लियर। आप सोचते कुछ हो और लिखते कुछ हो, तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको। दिस इज मॉटलिंग, नॉट मोल्टिंग। ओके, सो मॉटलिंग, MOTTLING, मॉटलिंग। फाइन। अब इसमें होता क्या है? बिकॉज ड्यू टू विच द टूथ गेट्स डिफॉर्म्ड, जो टूथ होता है वो डिफॉर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि फ्लोराइड ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, फ्लोराइड्स अगर ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा? जो इनामल होगा इट बिकम इरेगुलर। इनामल क्या होना? स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, इनामल की जो लेयर है वो स्मूथ होना चाहिए। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस फ्लोराइड्स, व्हाट हैपेंस, द इनामल लेयर इट बिकम इरेगुलर। ठीक है, अब इरेगुलर हो जाता है, इसीलिए क्या होता है? इट स्टार्ट्स टू फॉल। इसीलिए ये धीरे धीरे मतलब गिरने लगता है, खत्म होने लगता है। ठीक है, इससे क्या होगा? जो आपका हमारा टूथ है ये आपका वीक हो जाएगा और मतलब आप बोल सकते हो it will lose the first layer, that is enamel, and it will weaken the tooth structure. Tooth का जो structure है वो weak हो जाएगा, right? So I believe it is clear. Let's move on to the next part. Now the next is now yeah. Now the root of the tooth is fitted with bone. Okay. अभी जो root है, जो हमारे दांतों का जो रूट है, हमने क्या देखा? ये एल्वियोलर बोन के सॉकेट के साथ फिट होता है ना, एंड इट बाइंड्स विद द टूथ। जैसे मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि सीमेंटिंग, मतलब जब हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? एक ब्रिक लेते हैं, फिर दूसरा ब्रिक लेते हैं, फिर उसके बीच में हम सीमेंट डालते हैं ना, ताकि वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, ताकि स्ट्रक्चर मजबूत हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। बिल्कुल वैसे ही हमारा जो टूथ है वो हमारे सॉकेट के साथ, एल्वियोलर बोन के एल्वियोलाई के साथ वो सेट होने के बाद वो सीमेंटिंग जो लेयर है उसको टाइटली उसको बाइंड कर देता है, उसको बंद कर देता है उसके साथ। ठीक है, and that cementing layer, it's actually, there is a layer which is called cementing layer, which is connecting or which is actually binding the tooth with its socket very tightly, right? Now periodontal layer means this is the layer. पहले भी मैंने बताया था, अपना डायग्राम अभी मैं वापस नहीं जा रहा हूं, आप अपना डायग्राम देखो, because we have already drawn it.
आपने पहले ड्रॉ कर लिया होगा इसको। तो पेरिडोंटल जो मेम्ब्रेन है वो क्या है? इट इज द मेम्ब्रेन विच इज प्रेजेंट इन द रूट बिटवीन द सीमेंटिंग लेयर एंड द टूथ। टूथ और सीमेंटिंग लेयर के बीच में जो लेयर रहता है उसे हम बोलते हैं पेरिडोंटल लेयर। क्या कहते हैं उसे? पेरिडोंटल लेयर। ठीक है, तो सीमेंटिंग लेयर और टूथ के बीच में जो लेयर रहेगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे पेरिडोंटल लेयर। ओके, नाउ dentine. See, dentine is actually, the second layer. हमने भी बात किया था कि dentine क्या है? It is a second layer. अभी dentine जैसे हमने पहले देखा था, इनामेल कौन से सेल इनामेल को सिक्रीट करता है? एम्ब्लियोब्लास्ट सेल। अब यहाँ पे कौन से सेल जो है जो कि आपके डेंटाइन को सिक्रीट करते हैं? ओडोंटोब्लास्ट सेल। ध्यान से देखो, ओडोंटोब्लास्ट सेल मैंने बताया था पल्प कैविटी के इनर मोस्ट लेयर में ओडोंटोब्लास्ट सेल का लेयर रहता है ना? तो ओडोंटोब्लास्ट सेल जो है दैट इज सिक्रेटिंग दिस सेकंड लेयर ऑफ द टूथ, दैट इज योर डेंटाइन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स है वो क्या सिक्रेट करता है? इट इज सिक्रेटिंग द सेकंड लेयर, दैट इज योर डेंटाइन। ठीक है, नाउ इट इज आल्सो हार्ड बट नॉट एज हार्ड एज इनामेल। ये भी बहुत हार्ड होता है, इसका जो स्ट्रेंथ होता है ये भी बहुत ही हार्ड होता है, लेकिन इनामेल के जैसा जितना हार्ड नहीं होता। इनामेल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। इनामेल से कोई भी सब्सटेंस जो है हमारे बॉडी में उतना हार्ड नहीं होता। तो डेंटाइन भी हार्ड होता है लेकिन इनामेल के कंपैरिजन में कम हार्ड होता है। ठीक है, नाउ इट इज आल्सो मेड अप ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। ये किससे बना होता है? ये कैल्शियम सॉल्ट से बना होता है एंड इट इज स्लाइटली येलोइश इन कलर। ये जो कलर होगा इसका कलर कैसा होता है? ये थोड़ा सा येलोइश होता है। और ये बनता किससे है? इसका कंपोजिशन क्या है? इट इज आल्सो मेड अप ऑफ द कैल्शियम सॉल्ट। ठीक है, लेकिन इसमें फ्लोराइड नहीं है, ध्यान देना, इसमें फ्लोराइड नहीं है, इसमें सिर्फ कैल्शियम सॉल्ट से बनता है। ठीक है, इट इज स्लाइटली येलोइश इन कलर एंड दिस इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। इसका ओरिजिन जैसे पहले वाला हमने क्या देखा? एक्टोडर्मल। इनामेल क्या था? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन था ना? और डेंटाइन क्या है? डेंटाइन है मीजोडर्मल इन ओरिजिन। तो दोनों में डिफरेंस है। क्वेश्चन आ सकता है कि डेंटाइन इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, मीजोडर्मल इन ओरिजिन और एंडोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, तो आपको जवाब क्या देना है? और नन ऑफ दिस आएगा तो आपको क्या बोलना है? मेसोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, और ये एक्चुअली इनामेल जो है वो तो सिर्फ क्राउन पार्ट में रहता है, हमने पहले भी देखा है, लेकिन ये डेंटाइन जो है इट इज प्रेजेंट ऑल ओवर द टूथ। पूरे टूथ में हर जगह पे आपको डेंटाइन मिलेगा, डेंटाइन का लेयर है पूरा। ठीक है, लेकिन इनामेल का लेयर आपको सिर्फ क्राउन पार्ट पे सिर्फ एक ही जगह पे मिलेगा। सो दैट इज अ डिफरेंस। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज पल्प कैविटी। पल्प कैविटी क्या है? पहले भी मैंने डिस्कस किया, इट इज द इनरमोस्ट लेयर, इट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द it is the innermost layer and where we are having the living cells, okay, and also it is having the nerves and the blood vessels. ठीक है, तो innermost जो layer होता है उसके वो होता है pulp cavity, और pulp cavity जो है उसके अंदर innermost मतलब जो भी चीजें रहते हैं, मतलब हम देखेंगे तो blood vessels रहेगा, nerves रहेगा। मैंने ड्रॉ किया है, देखिए रेड एंड ब्लैक कलर में कि blood vessels है, nerves है, तो these are actually present in the pulp cavity and the tissue and the nerve fibers. ठीक है, नाउ द टंग इट मेक द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ। तो हमने डायग्राम बनाया, हमने देखा कि जो तीनों उसके लेयर हैं वो बनता कैसे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, वो हमने डिस्कस किया। अभी हम आगे चलेंगे और आगे हम देखेंगे कि दूसरा जो हमारे बकल कैविटी में जो दूसरे स्ट्रक्चर्स है, दूसरे पार्ट्स है, हम उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा जो पार्ट है दैट इज योर tongue. Now, tongue we'll discuss in detail now. Right? Tongue it is actually देखो टंग पहले हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, उसके बाद डायग्राम देखेंगे, उसके बाद टंग में जो भी डिफरेंट पार्ट्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है टंग में हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, हमारे गस्टैटो रिसेप्टर्स होते हैं। टेस्ट बर्ड्स को हम कहते हैं गस्टैटो रिसेप्टर्स। क्या कहते हैं हम उसे? गस्टैटो रिसेप्टर्स। ठीक है, तो गस्टैटो रिसेप्टर्स क्या काम करते हैं, कहां पे रहते हैं, कैसे रहते हैं, कितने तरह के होते हैं, we'll discuss all that in detail slowly. Okay, now tongue क्या है? Tongue is actually made up of skeletal muscle. Tongue जो है ना वो skeletal muscle से बनता है। किससे बनता है? It is actually made up of skeletal muscle and it is making the floor of the buccal cavity. तो buccal cavity का जो floor है वो बनता वो किससे कवर रहता है? उसमें क्या रहता है? उसमें टंग रहता है।
ठीक है। तो बकल कैविटी के लोअर पार्ट में या बकल कैविटी के फ्लोर में हम क्या दिखेंगे, देयर इज प्रेजेंट द टंग इज प्रेजेंट देयर, ठीक है। तो टंग रहता है। और टंग के बहुत सारे काम है, हम बात करेंगे एक के बाद एक। और टंग बनता किससे, स्केलेटल मसल से बनता है, इसीलिए तो वॉलंटरी है ना। आप अपने टंग को अपने हिसाब से इधर उधर आप उसको मूव कर सकते हो, आप अपने हिसाब से उसको यूज कर सकते हो, है ना। सो अब देखो इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जो टंग जो है हमारे बकल कैविटी के साथ अटैच होता है, हमारे बोन के साथ, बकल कैविटी के बोन के साथ अटैच होता है। और वो अटैच जो होता है वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर के साथ होता है, एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है वो, जिसके साथ ये लिगामेंटस, मतलब हम बोल सकते हैं लिगामेंटस स्ट्रक्चर होता है, जिसके साथ हमारा जो टंग है वो हमारे बकल कैविटी के बोन के साथ अटैच होता है। सो इट इज अटैच्ड टू द बकल कैविटी विद द हेल्प ऑफ अ लिगामेंटस स्ट्रक्चर। और उस लिगामेंटस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, फ्रेनुलम। Always when you write something, when you some technical terms in biology, when you read, you should be very careful about the diagram and the pronunciation, right? So frenulum, the frenulum is the structure, the ligamentous structure, which is actually helping the tongue to get attached with the buccal cavity, right? Now it is the ligament fold with which the tongue is attached to the floor of the buccal cavity, ठीक है। तो जो ligamentous जो structure होता है, that is your frenulum. What is its function? Its function is that it actually help the tongue to get attached with the buccal cavity. Fine. So if you see the diagram here, so if you see the diagram, this is the anterior part of the tongue. This is the anterior part of the tongue, and this is the posterior part of the. So this part, the posterior part, is actually attached with the buccal cavity bone with the help of फ्रेनुलम। तो फ्रेनुलम के हेल्प के जो कि लिगामेंटस स्ट्रक्चर होता है, जिसके हेल्प से ये आपका जो टंग है वो बकल कैविटी के साथ अटैच रहता है। यहां तक क्लियर है? चलिए लेट्स मूव ऑन। नाउ इफ यू सी द डायग्राम केयरफुली, सो आई हैव ड्रॉन सर्टेन स्ट्रक्चर्स इन राउंड, इन सर्कल, like and some conical structures also there. So we'll discuss all the things in detail. So this is the basic structure of the tongue. Tongue will be like this. This is the anterior part is a little bit narrow compared to the posterior part. Posterior part is a little bit wide, broader, and the anterior part is a little bit like it's a little bit comparatively narrower, ठीक है। Now अब देखो जो टंग होता है ना, उसमें जो होता है कि पैपिली होता है। टंग में क्या होता है ना, देयर आर पैपिली आर प्रेजेंट, ठीक है। एंड देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैपिली। अब ये पैपिली क्या है, आप बोलोगे सर पैपिली क्या है। देखो पैपिली इज अ स्ट्रक्चर, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर व्हाट वी कैन सी, व्हाट वी कैन फाइंड इन टंग। तो टंग में हमने बेसिकली जो भी पार्ट्स हमने देखा है, जो टंग बनता है जिससे है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स है, तो उसको हमने नाम क्या दिया है, पैपिली, ठीक है, और पैपिले, ठीक है। सो जो टंग पे जो पैपिले होता है वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं। पहला वाला है सर्कमवेलेट। पहला वाला क्या है, पहला वाला टाइप है सर्कमवेलेट। दूसरा वाला है फंजीफॉर्म और फंजीफॉर्म पैपिले। पहले वाले को हम बोलते हैं सर्कमवेलेट पैपिले, दूसरा वाले को बोलते हैं फंजीफॉर्म पैपिले, तीसरे वाले को बोलते हैं हम फिलीफॉर्म पैपिले, ठीक है। तो 3 तरह के पैपिले बेसिकली होता है। अब यहां पे अगर आप डायग्राम पे ध्यान दोगे, अगर आप देखोगे, इफ यू सी द डायग्राम केयरफुली, सो यू कैन सी द सर्कमवेलवेट पैपिले। पहला तो ये लार्ज होता है साइज में ये बड़ा होगा, और इसका नंबर जो होगा वो लिमिटेड होता है। नॉर्मली ये 8 से 12 होता है। कितना नंबर होता है, 8 to 12। द नंबर ऑफ द सर्कमवेलेट पैपिले इज इट इज रेंजिंग फ्रॉम 8 to 12। 8 से 12 नॉर्मली होता है, ठीक है। और इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, इट्स अरेंज इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग इन द फॉर्म ऑफ अ इन्वर्टेड वी। वी को अगर हम उल्टा लिखेंगे, थोड़ा यहाँ पे बना के देखते हैं, अगर वी को हम उल्टा लिखेंगे ऐसा, तो बिल्कुल उस तरह का, मतलब एग्जैक्टली आप ये मत सोचो कि बिल्कुल वी के जैसा ऐसा एग्जैक्टली, बट इफ यू सी द ओरिएंटेशन इज लाइक दैट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो उल्टा वी जैसा ही है। तो मैंने थोड़ा सा स्ट्रेट बना दिया है, आप थोड़ा सा इसको कर्विश ऐसे बनाना, थोड़ा सा आप वी के जैसा बनाना, ठीक है। सो थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा बड़ा बना लेना, ये जो मैंने बनाया सर्कमवेलवेट, तो ये जो इन्वर्टेड वी के जैसा होता है। अरेंजमेंट क्या होता है इसका, इन्वर्टेड वी के जैसा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सर्कमवेलवेट पैपिली। इसका नंबर कम रहता है, मतलब ये प्रेजेंट होता है 8 से 12 इसका नंबर है। इट्स प्रेजेंट इन
8 to एक्चुअली 8 to 12, 8 से 12 ही इसका नंबर होता है, ज्यादा नहीं होता, बहुत न्यूमरस नहीं होता, साइज भी बड़ा होता है और पोस्टीरियर पार्ट में रहता है एंड इट्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड वी। ठीक है, दूसरा है जो छोटा होता है उससे, दैट इज योर फंजीफॉर्म। अभी जो फंजीफॉर्म पैपिली है, ठीक है, तो फंजीफॉर्म पैपिली में आप क्या देखोगे, फंजीफॉर्म पैपिली होगा ये थोड़ा सा स्वेलिंग, मतलब स्वेल टाइप होगा, थोड़ा सा स्वेल होगा, जैसे मशरूम जैसा स्ट्रक्चर होगा इसका। ठीक है, और अच्छा यहाँ पे आप ओके विल मूव ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट लेट मी जस्ट हैव अ क्विक, let me just say it very quickly what is circumvelvet. See, they are the largest in size, the circumvelvet papillae, they are the largest in size but less in number, ranges 8 to 12, and arrangement is also peculiar. They arrange in the form of inverted V and they are present at the back side or the posterior side of the tongue. ठीक है ना, ये डायग्राम आप बना लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आपको, मैं मानता हूं कि अब तक आपने डायग्राम पॉज करके बना लिया होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट यू जस्ट रेफर योर डायग्राम एंड लिसन टू दिस पार्ट, राइट। नाउ अराउंड द circumvelvet papillae there is a groove or depression and the test buds are present on the wall of the groove। ठीक है, अब जो circumvelvet papillae है ना, so there is a groove और डिप्रेशन होता है, एक डिप्रेशन रहता है circumvelvet papillae के चारों तरफ, and the test birds are actually present in that depression or in the wall of the groove। ठीक है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा डायग्राम पीछे जाएंगे, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो मतलब ये स्ट्रक्चर होता है, इसके चारों तरफ डिप्रेशन होता है, तो आप देख सकते हो आई हैव मेड इट। सो ये अगर मान लो ये circumvelvet papillae है बीच में, तो टेस्ट बर्ड्स बिल्कुल इसके चारों तरफ ऐसे रहता है। ठीक है, अंडरस्टूड ना, बिल्कुल इसके चारों तरफ ऐसे रहता है। नाउ फंजीफॉर्म पैपिली, सो दे आर दी swollen, ठीक है, swollen and the shape is slightly look like mushroom। ये थोड़ा स्वेल होता है, swollen जैसा स्ट्रक्चर होता है और मशरूम के जैसा दिखता है, एंड देयर नंबर्स आर मोर देन circumvellets। इनका नंबर क्या होता है, circumvellet से ज्यादा होता है लेकिन मैक्सिमम नहीं होता, मतलब सबसे ज्यादा नंबर इस वाले पैपिली का, इस टाइप के पैपिली का तो नहीं है, लेकिन ये जो नंबर इनका है दैट इज मोर देन पैपिली से इनका नंबर फंजीफॉर्म पैपिली का नंबर ज्यादा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा नंबर किसका होता है, फिलीफॉर्म पैपिली, दे आर न्यूमरस इन नंबर। सबसे ज्यादा नंबर जो टंग में सबसे ज्यादा हमें मिलेगा, कौन सा वाला पैपिली, फिलीफॉर्म पैपिली हमें सबसे ज्यादा मिलेगा, है ना। सो जो मशरूम लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है, और ये रहता कहां पे, हमें मिलेगा कहां पे, मार्जिन्स, जो टंग के मार्जिन्स है ना, टंग के जो लैटरल साइड्स है, साइड्स में मतलब साइड वाले एरिया में हमें ये जो फंजीफॉर्म पैपिली हमें ये दिखता है। एक बार देख लेते हैं डायग्राम फटाक से। देखिए ये जो साइड में आपको दिख रहा है ना, जो साइड में मैंने बनाया हुआ है, ये थोड़ा छोटा भी होता है साइज में, ठीक है, कंपेयर टू द circumvelvet, द फंजीफॉर्म पैपिली आर लिटिल स्मॉलर इन साइज, और टंग के ऐसे साइड में ऐसा रहता है, मतलब मार्जिन्स में आपको ये मिलेगा। ठीक है, चलिए, और अगर आप इसको अच्छे से माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है बिल्कुल, ठीक है ना, इट्स जस्ट लाइक मशरूम। फाइन, नेक्स्ट फिलीफॉर्म पैपिली। फिलीफॉर्म पैपिली मतलब दे आर स्मॉलर एंड न्यूमरस। ये जो होता है ना, ये सबसे ज्यादा नंबर ये वाले पैपिली जो हमारे टंग में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। So they are the smaller and they are numerous in number and they are conical in shape। इनका शेप कैसा होता है, एक कोनिकल होते हैं शेप में, and filiform papilla is without the test buds and that is no test buds। filiform papilla में कोई भी टेस्ट बर्ड्स नहीं होता है, और ये कहां पे रहता है, टंग के ये बीच में जो एरिया है, जो जगह है, वहां पे ये filiform papilla होता है, that is it is present in the central part of the tongue everywhere। पार्ट सेंट्रल, जो टंग के सेंट्रल पार्ट है उसमें ये हर जगह आपको मिल जाएगा। इसका शेप कैसा है, इट इज कोनिकल इन शेप। ठीक है, एक बार देख लेते हैं फटाफट। देखिए बीच में आपको जितने भी दिख रहे हैं मैक्सिमम ये कोनिकल शेप का, ये सब क्या है, दिस आर ऑल फिलीफॉर्म पैपिली। ठीक है, और इसमें कोई ज्यादा टेस्ट बर्ड्स नहीं होते हैं। ठीक है, फाइन। सो these are the different types of your papillae which is present in the tongue। तो टंग में जो पैपिली होते हैं वो
तीन तरह के होते हैं. There are three types of papillae which is present in the tongue. So this three type of papillae it is present in the tongue, and apart from that we need to discuss some other things like tongue is responsible for various functions like, और क्या क्या फंक्शंस है इसके अलावा जो आप बात करेंगे टेस्ट बर्ड्स के बारे में बात करेंगे, टेस्ट के बारे में बात करेंगे, कौन सा जोन में क्या टेस्ट होता है वो भी हम देखेंगे. सो टंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस फंक्शंस लाइक दे आर गस्टैटोरिसेप्टर्स, दैट इज द टेस्ट बर्ड्स जो है जो टंग में जो है टेस्ट बर्ड्स वो मिलेगा आपको. दे आर गस्टाटो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द ऑन द टेस्ट बर्ड्स. नाउ द टेस्ट बर्ड्स are found in circumvallate as well as in fungiform papillae. टेस्ट बर्ड्स हमको कहां मिलेंगे? टेस्ट बर्ड्स हमको मिलेंगे सर्कमविलेट में और फंजीफॉर्म पैपिले में मिलेगा. ठीक है, टेस्ट बर्ड्स हमको कहां मिलेगा? हमें मिलेगा सर्कमविलेट एंड फंजीफॉर्म पैपिले में, दो जगह हमें टेस्ट बर्ड मिलेगा. ठीक है. नाउ द टेस्ट बर्ड्स आर व्हाट एक्चुअली? द टेस्ट बर्ड्स क्या है? अब अगर आपसे आप सोचोगे कि हम कुछ भी खाते हैं तो हमें उसका जो टेस्ट है वो पता चलता है, एक्चुअल में वो होता क्या है? दीज आर नथिंग बट द कीमोरिसेप्टर्स. सबसे पहले तो आपको ये चीज याद रखना होगा, जानना होगा कि टेस्ट बर्ड्स कहां पे होते हैं, कौन से पैपिले में? सर्कमवेलमेट जो विलेट है उसमें मिलेगा आपको टेस्ट बर्ड, और कहां मिलेगा? फंजीफॉर्म. ठीक है, दोनों में आपको मिलेगा. लेकिन फिलीफॉर्म जो आपका पैपिले है उसमें टेस्ट बर्ड्स नहीं होता है. सो बी केयरफुल. मतलब हमारे जो मिडिल पार्ट है, मिडिल रीजन है टंग का, उसमें कोई भी टेस्ट बर्ड्स बेसिकली नहीं होता है. ठीक है. टेस्ट बर्ड्स आर व्हाट? दीज आर नथिंग बट द कीमोरिसेप्टर्स. ये क्या होता है ना? दीज आर केमिकल रिसेप्टर्स और कीमोरिसेप्टर्स. इनका काम क्या है? दे रिसीव द केमिकल व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर फूड. ये क्या करता है? दे रिसीव द केमिकल. हम जो भी खाते हैं ना उसको उसमें जो केमिकल्स होते हैं उसको ये रिसीव करते हैं, उसके बाद हमें इसका टेस्ट पता चलता है. तो जो बर्ड्स आपके टेस्ट बर्ड्स जो है वो बेसिकली है क्या? दिस आर नथिंग बट दे आर द कीमो receptors. What are they? What are these? These are chemoreceptors. What are these? These are chemoreceptors. तो हमारे फूड में जो भी केमिकल्स होते हैं इसको ये जो बर्ड्स है इसको ये एब्जॉर्ब करते हैं, और इसको हम उसके बाद हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है, मतलब टेस्ट कैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है. That then we can detect it. Fine. So next. Tongue is also help in the mixing of food with the saliva. जब हम कुछ भी चू करते हैं, हम कुछ खाते हैं, तो जो सलाइवा के साथ फूड जो है वो मिक्स करने में हमें कौन हेल्प करता है? टंग हमें हेल्प करता है. ठीक है. Now it helps in the articulation of speech as well. Articulation of speech मतलब हम जो बात करते हैं, whenever we speak, we talk, right? तो बात करने के लिए हमें जो टंग है वो हमें मदद करता है. ठीक है, इसको बोलते हैं आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच. जैसे अगर मैं आपसे बोलूं एक स्मॉल एक्टिविटी आप करिए, you just pause the video and listen to me first that what is the activity I'm asking you to do is that अब ये करो कि अपने टंग को बिना हिलाए, अपने टंग को अपने जबान को बिल्कुल बिना हिलाए, बिल्कुल भी यूज नहीं करके बात करने की कोशिश करो. say something, some words. okay, if I say you say pineapple without moving your tongue, say pineapple. Can you say this? Try it. Okay, no you can't. So you cannot speak, you cannot say anything without using your tongue. So tongue is actually helping us to speak as well. अगर आपका टंग काट दिया जाए तो आप बात नहीं कर पाओगे, है ना. So tongue is a very very important like part of our body. So tongue help in not only for test but also it help in articulation of speech. बात करने में मदद करता है. Next, it helps in swallowing of the food. जैसे हम जब कुछ भी फूड मुंह में मतलब हम अपने बकल कैविटी में हम लाते हैं, उसको चबाते हैं, उसको च्यू करते हैं, तो वो होता क्या है? सलाइवा के साथ वो मिक्स होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट्स वो दे स्टार्ट टू ब्रेक एट द बकल कैविटी इटसेल्फ, एंड देन व्हाट हैपेंस? इट फॉर्म्स अ बोलस. ठीक है, जो हम चबाते हैं, चबाने के बाद हमारे आफ्टर द च्यूइंग व्हाटएवर द थिंग्स इट फॉर्म इनसाइड द बकल कैविटी, द फूड, that is called the bolus, and it is then engulfed by it is swallowed, it is getting swallowed by us. And for swallowing of the food, it is also the bolus is actually it is swallowed, and for that also the tongue is actually helping. ठीक है, so it also help in swallowing of the food. The food which we swallow is known as bolus. क्या कहते हैं उसे? bolus. ठीक है. Now अब देखो हमारा जो टंग है ना, इसका और एक काम है. क्या काम है इसका? दूसरा काम है कि ये एक नेचुरल टूथब्रश है.
ठीक है। हम अपने दांतों को अगर मतलब टंग से हम अपने दांतों को नॉर्मली हम क्लीन रख सकते हैं। नॉर्मली इसको एक नेचुरल टूथब्रश भी बोला जाता है। तो इट ऑल्सो हेल्प टू क्लीन द टू मेंटेन और टू क्लीन द टीथ एज वेल, ठीक है। जैसे मान लो आप कुछ खाना खा रहे हो और थोड़ा सा कुछ आपके दांतों में या कहीं पे फंस गया, तो व्हाट यू यूज फर्स्ट, यू यूज योर टंग टू गेट रीड ऑफ दैट पार्ट, राइट। तो अपने टंग को यूज करते हो ना, तो इट इज हेल्पिंग यू टू मेंटेन टू क्लीन योर टीथ और नॉट, सो इट्स वर्किंग एज अ नेचुरल टूथब्रश, राइट। Now, if you see just after the buccal cavity, where the part of the pharynx starts, and the first part is called, अभी इसका next हम देखेंगे pharynx का जो part है उसमें clear हो जाएगा आपको। जो ओरोफैरिंक्स एरिया है, मैं ओरोफैरिंक्स मतलब अभी इतना आप समझिए कि इमीडिएटली आफ्टर द जस्ट आफ्टर द यूव्यूला, आपको इतना तो पता ही है यूव्यूला कहाँ है, उसके बाद जो पार्ट स्टार्ट होता है ना, वहां पे अगर हम देखेंगे, अगर समवन इफ एक्चुअली ओपन देयर माउथ वेरी वाइडली, so it is visible that we can see the tonsils, that inlingual tonsils. So these inlingual tonsils are visible, and इसका जो काम है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है डिफेंस, ठीक है। इम्यूनिटी सिस्टम में ये हमें मदद करता है, हमें डिफेंस में मदद करता है, बाहर के जो भी पैथोजन से जो भी चीजें हैं उससे हमें ये बचाता है, ठीक है, हेल्प करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज salivary gland. So next topic what we are going to discuss, so that is your salivary gland. देखो salivary gland हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सलाइवा क्या होता है, salivary gland क्या होता है ना। देखो बेसिकली हमारे बॉडी में, हमारे पास, हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो salivary glands है वो बेसिकली 3 पेयर होते हैं। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ salivary glands. वन इज पैरोटिड salivary gland, दूसरा होता है आपका, चलो पहले देख लो क्या क्या होता है। दूसरा होता है सब मैंडिबुलर salivary और सब मैक्सिलरी salivary gland, एंड तीसरा होता है सब लिंगुअल salivary gland, ठीक है। अब इसका ये जो सारे salivary gland है ना, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन होता है सलाइवा को सीक्रेट करना। और सलाइवा का काम क्या है? सलाइवा का काम है हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करना, ठीक है। और भी देखो सलाइवा भी 2 तरह का होता है, अभी डिस्कस करेंगे हम अभी आगे जाके, ठीक है ना। 2 तरह का, देखो नॉर्मली हम जब खाना नहीं खाते, हमें जब भूख नहीं लगता, हम जब नॉर्मल कंडीशन में हम रहते हैं, तो उस समय भी हमारे माउथ को मॉइस्चर की जरूरत होती है ना, तो उस समय भी सलाइवा सिक्रीशन होता है, बट दैट सलाइवा इज नॉट सिमिलर टू द salivary amylase. तो salivary amylase is different, and saliva which is present all the time in our mouth to maintain to reduce the friction, that is different actually, it is thick in nature. वो हमें lubrication provide करता है ताकि हमारे मुंह के अंदर ड्राइनेस ना आए. So that is a different thing, we'll discuss now later on. Now, so there are 3 pairs of saliva present. There are 3 pairs of salivary glands are present. Okay, which is opening into the buccal cavity. पहला क्या है? Parotid salivary gland. पहला क्या है? Parotid salivary gland. Now, it is located beneath the earlobe. ठीक है, ये बिल्कुल कान के नीचे होता है. हमारे जो कान है ना, बिल्कुल ईयर लोब, जो हमारे ईयर लोब से एक्सटर्नल ईयर लोब, बिल्कुल उसके नीचे होता है ये आपके जो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड से. और हमेशा याद रखो ये 3 टाइप के होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं. देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स. देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स. ओके, फर्स्ट इज पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड. इट इज आल्सो, सारे जो ग्लैंड्स होते हैं वो पेयर में होते हैं, ठीक है ना. तो पहला है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड. इट इज लोकेटेड बीनीथ द ईयर लोब, एंड दिस ग्लैंड ओपन्स विद द हेल्प ऑफ अ duct near the second molar of the upper jaw. देखो डक्ट क्या है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है, तो अभी भी मैं बता देता हूं आपको. देखो डक्ट ये होता है कि मान लो कि जब हम बात कर रहे थे ना एनिमल टिश्यू, तो उस पर डिस्कस किया था मैंने, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं. मान लो कि अगर ये ग्लैंड है, तो ग्लैंड का जो सीक्रेशन होगा वो एक पर्टिकुलर लोकेशन में ये इसको सीक्रेट करता होगा, ठीक है. तो ये जो पर्टिकुलर लोकेशन में सीक्रेट करना चाहता है, इसके लिए जो कनेक्शन होता है, ट्यूब लाइक कनेक्शन होता है, हम बोलते हैं डक्ट, ठीक है. तो बिल्कुल वैसे ही ये जो हमारा पैरोटिड जो सलाइवरी ग्लैंड है, इसका भी डक्ट है. और वो कहां पे ओपन होता है, कहां पे आके ओपन होता है? इन द सेकंड मोलार. ध्यान से देखो, इट ओपन्स नियर द सेकंड मोलार ऑफ द अपर जॉ. हमारा अपर जॉ होता है, उसका जो सेकंड मोलार है. देखो प्रीमोलार, मोलार हमने पढ़ा था ना, तो मोलार कितना होता है? 3 होता है. तो सेकंड वाला जो मोलार है उसके बिल्कुल वहीं पे, सेकंड मोलार जहां पे, बिल्कुल वहीं पे ये डक्ट है, अपर जॉ में ओपन होता है. मतलब वहां से ये अपना सिक्रेशन को पोर करता रहता है कंटिन्यूअसली, राइट. नाउ देयर इज दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड. पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड जो है, दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ा होता है सारे सलाइवरी ग्लैंड में, ये सबसे बड़ा होता है साइज में.
एंड द डक्ट विच ओपन्स, जो डक्ट जो सेकेंड मोलर में आके अपना सिक्रीशन पोर करता है, ओपन होता है, उसको हमने क्या कहा है, उसका नाम क्या है, उसका है नाम है स्टेनसन्स ग्लैंड डक्ट। क्या कहते हैं? टेंसन्स डक्ट, ठीक है, टेंसन्स डक्ट, एस साइलेंट, टेंसन्स डक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी ग्लैंड। दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या ग्लैंड है? सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी। ओके, just first you listen to the about these glands. I will show you the diagram and we'll discuss again to have a clarity. So don't worry about that, just first listen carefully what is the basic structure and where it's present. Location बहुत important है इसका, और ducts का नाम बहुत important है। Now secretion is done by duct, it opens beneath the tongue। अभी आप अपना अगर टंग को ऊपर करोगे, ठीक है, तो उसके नीचे बिल्कुल beneath the tongue, बिल्कुल टंग के नीचे इसका जो सब मैंडिबुलर जो सलाइवरी ग्लैंड होता है, जिसका दूसरा नाम है सब मैक्सिलरी, हम भी सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी हम इसे कहते हैं। इसका जो सिक्रीशन है ये कहाँ पे, ये मतलब इसका ओपनिंग, डक्ट का जो ओपनिंग है वो कहाँ पे होता है? इट इज ओपन beneath, just beneath the tongue, टंग के बिल्कुल नीचे होता है, ठीक है। सो द डक्ट इज नोन एज वर्टन्स डक्ट। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर डक्ट जो कि टंग के नीचे ओपन होता है, उसका नाम क्या है उस डक्ट का? वर्टन्स डक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द लास्ट वन, द थर्ड वन, दैट इज योर सबलिंगुअल डक्ट। क्या होता है? सबलिंगुअल डक्ट। सबलिंगुअल डक्ट क्या है? इट प्रेजेंट जस्ट बीनीथ द टंग। ये भी जो टंग के बिल्कुल जो ग्लैंड जो है ये टंग के बिल्कुल नीचे रहता है, और इसका डक्ट है, इसको हम बोलते हैं बार्थोलिन्स डक्ट और डक्ट ऑफ रेवेनस, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? बार्थोलिन्स डक्ट्स भी बोलते हैं और डक्ट्स ऑफ रेवेनस, ठीक है। और दिस वन, दिस सबलिंगुअल ग्लैंड इज आल्सो, इट इज द स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। ये क्या होता है ना? दिस इज द स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सो लेट अस सी द डायग्राम एंड डिस्कस अगेन। तो यहाँ पे देखो, पहला अगर आप देखोगे, दिस इज द पैरोटिड ग्लैंड, मैंने क्या बताया था बिल्कुल, और ये डायग्राम बनाना है, यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, प्लीज बी केयरफुल, ये डायग्राम आपको बनाना है, यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, फाइन। आई विल चेक योर नोट्स। नाउ दिस इज द ग्लैंड which is present, first one we had talked, this is the largest gland which is present below the ear lobes, okay, इसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स। और देखो ये जो डक्ट यहाँ पे हमने क्या देखा, अपर जाओ के जो सेकंड मोलर में वहां पे आके ये खुलता है, वहां पे आके ओपन होता है, और इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरोटिड डक्ट भी बोल सकते हैं, और टेक्निकली हम क्या कह सकते हैं? टेंसन्स डक्ट। मैंने बताया अभी आपको, इट ओपन्स नियर द सेकंड अपर मोलर, ठीक है ना, ये भी बताया मैंने आपको, ठीक है। सो दिस इज द ओरल कैविटी। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी सी, फर्स्ट ये वाला देखना है, सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी, जिसको हम बोलते हैं ये वाला जो ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी ग्लैंड विच इज प्रेजेंट हियर बीनीथ द टंग, एंड इट इज ओपनिंग, इट्स डक्ट इज ओपनिंग बीनीथ द टंग, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं सब मैंडिबुलर डक्ट और सब मैक्सिलरी डक्ट। अच्छा, ये डक्ट जो है विच इज कनेक्टिंग एंड ऑल्सो ओपनिंग बीनीथ द टंग, उसको बोलते हैं वॉटन्स डक्ट, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? वॉटन्स डक्ट। एंड द थर्ड वन विच इज द स्मॉलेस्ट, ये लार्जेस्ट था, पैरोटिड लार्जेस्ट था, स्मॉलेस्ट क्या है? ये वाला, ठीक है। ये जो है सबलिंगुअल ग्लैंड, ये देखो आप बिल्कुल जो टंग है उसके बिल्कुल ये नीचे वाला हिस्सा उसी का होता है, बिल्कुल ये पूरा जो एरिया है, इट इज कवर्ड विद दिस, इट इज कंप्लीटली इट इज देयर, इट इज filled with or it's covered with the sublingual gland and its duct, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसके जो ducts है, multiple ducts है which is connecting with this area with this beneath the tongue, and it's also pouring its secretion just beneath the tongue, just like the Wharton's duct। Wharton के duct के जैसा ये भी यहीं पे टंग के बिल्कुल नीचे से अपना सिक्रीशन को पोर करता है। तो सिर्फ एक ही है जो पैरोटिड ग्लैंड है, उसका जो डक्ट है, मतलब जो टेंसन्स डक्ट है, वो अपर जॉ के मोलर से अपना सिक्रीशन को पोर करता है, ठीक है। So this is a basic diagram you need to understand, and you have to draw this. This is very, very important. You have to draw it. This diagram, all of you need to draw it. I am repeating it again and again. Right? Fine. Fine. So let's move on. Now there is a table. I have. You can see there is a table on your screen which will help you to actually study and read and remember, like the glands easily, ठीक है। तो आसानी से याद करने के लिए देखो मैंने यहाँ पे कॉलम बना दिया। पहला तो है आपका ये, दिस वन इज योर पैरोटिड ग्लैंड, मतलब ग्लैंड्स के नाम है, उसके बाद लोकेशन क्या है, डक्ट का नाम क्या है, और उसमें सेल जो होते हैं उसका टाइप क्या है, उसका नाम क्या होता है, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे पैरोटिड ग्लैंड, जिसको पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड जो सबसे बड़ा होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, एंड
चलो यहाँ पे लिए डिस्कस कर लेते हैं। कहाँ रहता है? बिलो द ईयर लोब्स, ठीक है। डक्ट्स जो है, जो डक्ट है जो उसका है, उसको उसका नाम क्या है? टेंसन डक्ट। सेल जो हमें मिलते हैं इसमें क्या होते हैं? वो सीरस सेल्स होता है। सेल टाइप क्या होता है? सीरस सेल्स, ठीक है। अच्छा, ओके। ओपन्स बिलो द सेकंड मोलर ऑफ द अपर, जो हमने ये डिस्कस किया था। कंटेन्स एंजाइम एंड वाटर, क्या रहता है इसमें? बहुत सारा एंजाइम भी रहता है और वाटर रहता है। इसके सिक्रेशन में हमें क्या मिलेगा? एंजाइम्स एंड वाटर बोथ। अब ये पैरोटिड जो ग्लैंड है, इसको अगर इन्फेक्शन हो गया, स्पेशली द वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं, उस डिजीज को हम कहते हैं मम्स। आपने सुना होगा, काफी लोगों को होता है बीच बीच में, तब तबीयत खराब होता है उनको, गले में थोड़ा सूजन हो जाता है, दे हैव स्वेलिंग इन देयर this is this neck part, this is this throat part, not neck part, throat part. So mumps कहते हैं उसे हम, ठीक है। तो होता क्या है? पैरोटिड ग्लैंड अगर इन्फेक्टेड हो गया वायरस के लिए, कोई वायरस उसे अगर इन्फेक्ट कर दिया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो उसे हम कहते हैं मम्प्स, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या है? सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ठीक है। लोकेशन बताइए क्या होता है? इट इज प्रेजेंट एट द जॉ एंगल, बिल्कुल जॉ एंगल में रहता है हमारा, हमने देखा था डायग्राम में। इट इज प्रेजेंट इन द जॉ एंगल। और इसके डक्ट का नाम क्या है? वॉर्टन्स डक्ट। एंड इट ओपन्स इनसाइड दी, इट ओपन्स बिलो द टंग इनसाइड दी लोअर इंसीसस, ठीक है। लोअर जो इंसीसर है बिल्कुल उसके वहीं पे उसके पास, और टंग के नीचे में इसका ओपनिंग होता है वॉर्टन्स डक्ट का, ठीक है। वो सीक्रेट क्या करता है? म्यूसिन इज सीक्रेटेड। व्हाट इट सीक्रेट म्यूसिन। अब देखो ये म्यूसिन जो है ना, यही है आपका, जो मैंने बताया था ना कि नॉर्मल कंडीशन में जो हमारे बकल कैविटी का जो फ्रिक्शन को मेंटेन करने के लिए, मतलब फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए जो जिस तरह का सिक्रीशन होता है, वो प्रॉपर जो सलाइवरी अमाइलेज है वो नहीं, उसमें एंजाइम नहीं होता। इट इज हेल्पिंग टू मेंटेन द ल्यूब्रिकेशन, उसका वो एक्चुअली इस म्यूसिन से होता है, ठीक है। सो म्यूसिन इज गेट सीक्रेटेड। नेक्स्ट द थर्ड वन इज योर सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ये स्मॉलेस्ट होता है और इसका लोकेशन क्या है? बीनीथ द टंग। अच्छा, बार्थोलिन्स और द डक्ट ऑफ रिवेनस, इट ओपन्स बिलो द टंग, ठीक है। बार्थोलिन्स और द डक्ट्स ऑफ रिवेनस, इट इज द डक्ट, नेम ऑफ द डक्ट, एंड इट ओपन्स बिलो द टंग। ये टंग के बिल्कुल नीचे ओपन होता है, it opens just below the tongue, and the mucus cells, that is the mucin is secreted, okay, the mucus cells, the mucin is secreted. म्यूसिन जैसे मैंने पहले बताया कि म्यूसिन क्या है। अब ये एक्चुअली उस तरह का, देखो मैंने अभी बताया ना, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि सलाइवा बेसिकली दो तरह का होता है, ठीक है। तो सलाइवा नहीं बोलना चाहिए, मैं मतलब ये बोलना चाहिए कि जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स है, हाँ आप कह सकते हो कि सलाइवा ही दो तरह का होता है। एक जो होता है म्यूसिन, जिसमें सीक्रेट होता है, उसका मेन फंक्शन जो है डाइजेशन में हेल्प नहीं करता। वो नॉर्मल कंडीशन में, जब आप ध्यान देना, अगर आपको बहुत भूख लगा होगा, इफ यू आर वेरी हंग्री, or at that time you are getting a very nice aroma of chicken curry or paneer butter masala, so what happens now, automatically your mouth will become watery. तो ध्यान देना, आपका माउथ उस समय जो सलाइवा सीक्रेट करेगा ना, वो पानी जैसा होता है, बहुत वाटरी होता है, इट्स बिटी वाटरी। लेकिन नॉर्मली आप जब बात करते हो, नॉर्मल जब आपको भूख नहीं लगा है, आपने खाना खा लिया, यू आर नॉर्मल वर्किंग नाउ, यू आर स्टडीइंग, व्हाटएवर यू आर डूइंग, एट दैट टाइम योर माउथ इज स्टिल मॉइस्ट, ठीक है। वो जो होता है वो थिक सलाइवा होता है, ठीक है। तो वो म्यूसिन से होता है सीक्रेट, उसमें म्यूसिन रहता है, ठीक है। अच्छा, सबलिंगुअल ग्लैंड में जो सेल्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? म्यूकस सेल्स टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? दे आर म्यूकस सेल टाइप, फाइन। नाउ द सेक्शन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, सीक्रेशन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड इज सलाइवा। देखो सलाइवा जो सलाइवरी ग्लैंड का जो भी सीक्रेशन है उसे हम क्या बोलते हैं? सलाइवा बोलते हैं, ठीक है। सलाइवा का कॉम्पोजिशन क्या है? क्या क्या होता है सलाइवा में? नॉर्मली अगर हम देखेंगे कॉम्पोजिशन क्या होता है, सो इन द सलाइवा व्हाट वी हैव वाटर, वी हैव एंजाइम एंड सलाइवरी अमाइलेज। इसको हम इसका दूसरा टेक्निकल नाम है विटाइलिन, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछ सकता है, ठीक है। नाउ इसमें अच्छा और क्या रहता है? सॉल्ट, म्यूसिन, लाइसोसोम विच आर बैक्टीरिसाइडल सब्सटेंसेस। ये क्या करता है ना, बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो हमारे मुंह में हवा जा रहा है, हमारे मुंह में एयर जा रहा है, तो बैक्टीरिया भी जा रहा है ना, तो उसको किल करने के लिए भी इसके पास हमारे सलाइवा सीक्रेट करता है म्यूसिन, सॉल्ट एंड लाइसोजाइम, ठीक है। चलो नेक्स्ट, pH ऑफ द सलाइवा। सलाइवा का pH कितना होता है? इट्स pH is 6.8, इज स्लाइटली एसिडिक। अब देखो ये स्लाइटली एसिडिक होने का कारण भी अभी हमने देखा ना कि हम जब बात करते हैं, हम अपना, बिकॉज वी आर ऑल द टाइम वी यूजिंग आवर बकल कैविटी, यूजिंग आवर टंग फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ द स्पीच, बात करने के लिए हम यूज करते हैं, है ना। तो इसलिए हमारे इन द बकल कैविटी इनसाइड आवर माउथ देयर इज अ चांसेस ऑफ गोइंग लॉट ऑफ बैक्टीरिया व्हिच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। सो अगर कंडीशन अगर एसिडिक होगा तो उसको किल करने में भी हेल्प करेगा। सो इसीलिए इट इज लिटिल बिट ऑफ इन द एसिडिक साइड, स्लाइटली एसिडिक, राइट।
Now the production or the volume of the saliva produced per day, हर दिन हम कितना सलाइवा सीक्रेट करते हैं पता है आपको? 1 to 1.5 लीटर पर डे। तो इसीलिए बोलता हूं ना मैं, इसीलिए मैं मतलब अभी तक तो मैंने ज्यादा बोला नहीं है, बट हमेशा मैं आपको ये बोलूंगा कि यू शुड ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। देखो कितना, आप अभी देखना आगे भी हम जाएंगे तो देखना गैस्ट्रिक जूस कितना निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस कितना निकलता है, तो आप देखोगे कि दिन में तो सिर्फ 2 से 2.5 लीटर सिर्फ ये सारे जो सब्सटेंसेस हमारे बॉडी फ्लूइड्स है वही सीक्रेट होता है। उतना तो हमें उतना पानी तो पीना ही चाहिए। तो इसीलिए हमें हमेशा हाइड्रेटेड रहना चाहिए, हमें हमेशा 5 से 6 लीटर से ऊपर मतलब मिनिमम पानी एक एडल्ट को पीना चाहिए हर दिन। दे शुड नीड टू ड्रिंक। अब देख सकते हो यहाँ पे सलाइवा कितना सीक्रेट हो गया, 1 से 1.5 लीटर। ठीक है, तो salivary amylase is present in the saliva of domestic animals like cows, buffaloes, carnivores, and the salivary amylase found in the saliva of the pig, that is the exception. तो ये याद रखना। So I think this much is enough for today, and we will discuss the other topics of this chapter in the next class. Till then, take care. Thank you. Bye.